Hello, hi, namaste, welcome. As you all know, that I have started my own podcast talk show, Joyful Journey, Your Path to Happiness. And I'm Preeti Sarjeva from Parenting with Preeti. Today I have another guest, very dear friend of mine, Dr. Jyoti Girish. Thank you so much, dear, for coming and accepting my invite. Thank you, Preeti. Thank you so much for inviting me and giving this opportunity. I'll be I feel blessed coming on your podcast, and I will be sharing our things now. So this is an opportunity for me equally. Thank you so much, and it's a true blessing for me too. Same here. So, before we dive into the topic of today's interesting topic, let me tell you something about Dr. Jyoti. Dr. Jyoti Girish is a passionate counselor, mentor, and founder of Carnival Society, a registered organization under the government of Rajasthan's Society Act since 2009. With over 20 years of experience across various domains, she actively collaborates with ed-tech companies and care centers to promote the awardees and the campaigns. For the past 12 years, she has been dedicated to CSR activities, focusing on the community development by supporting students, parents, and professionals in overcoming daily life challenges and understanding societal dynamics. Dr. Girish is highly qualified, holding a PhD, a master's in social work, multiple certifications, and is an accomplished Kathak dancer also. Wow, what a great profile you have, dear. What a great profile. Thank you so much. Thank you so much, dear. And as I have told you that she has been into social activities also, plus she has been helping the students and the parents also. So today's our topic for this is understanding and healing from parentification effects. So before I start, Dr. Jyoti, please let me know what is parentification. ये word is something very new for me also. ये parentification क्या होता है? Yeah, thank you for throwing this question first to understand about parentification. Many a times we are into parenting, we are into parenting talks, and many of the dynamics are related to parenting and all. But this one concept I am very much vocal about, parentification. So in psychology, parentification is a term जिसमें अपन इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. It is a reversal of role where a child requires to take care of their parents. Yeah, कहते हैं ना, mothering of child or mothering of your parents and parentifying your parents. It is that situation where a child is required to take care of their parents, all those responsibilities, and that could be due to any of the reason. That could be due to the loss of a parent or loss of any of the family member, or if your parent is not well at that particular stage, and सारी responsibilities उस बच्चे पे आ जाती है, घर के किसी भी बड़े बच्चे पे या छोटे पे या सिंगल चाइल्ड पे. that could be on anybody. तो ये रिवर्सल ऑफ रोल जो होता है, जहाँ पे कि बच्चा अचानक से घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए अकाउंटेबल हो जाता है, पेरेंट्स के इमोशंस के लिए अकाउंटेबल हो जाता है, और पेरेंट्स अननोइंगली बच्चे को उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन पास ऑन कर देते हैं. नाउ दिस सिचुएशन इज नोन एज पेरेंटिफिकेशन. Okay, okay. And this thing I can resonate it because being a single mom, I can see this thing in my child also, that she also connects very well for this emotional support. जो आपकी मतलब एक जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आप जैसे कर रहे हैं ना, तो शी इज ऑल्सो वन दैट टेक केयर ऑफ द इमोशंस, कि हाँ उसको देख के समझ में आ जाता है कि मम्मी का मूड कैसा है, क्या है, उसके हिसाब से शी स्पीक्स ऑन. आई वुड लव टू एक्सप्लोर दिस टॉपिक मोर ऑन दिस. Sure, we'll be digging more into this topic, and it's very important to understand. See, sharing with your child and you know passing that burden to your child. Now, there is a thin line difference between these two things. Like we all share with our kids, like how we are feeling, sometimes our moods and all, and it's normal. But just passing our burdens to them, और उन्हीं के ऊपर बच्चा जब ये सोचने लगे कि मेरे पेरेंट्स की खुशी इमोशनल सपोर्टर की तरह जब हम बच्चे को ट्रीट करने लगे, नाउ दैट इज समथिंग विच वी नीड टू टेक केयर ऑफ. Right.
मीन्स इमोशनल बॉन्डिंग इज गुड, बट जहाँ आपको लगता है कि हाँ बच्चे पे ये चीज प्रेशर बनती जा रही है, वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट, कि हमको अवेयरनेस रहनी चाहिए उस चीज एब्सोल्युटली की। एब्सोल्युटली। इसको और थोड़ा सा डिटेल में बात करना चाहूंगी प्रीति मैं, कि Sure. लेट्स अंडरस्टैंड कि देर आर टू काइंड ऑफ, मतलब फ्यू काइंड ऑफ पेरेंटिफिकेशन, लाइक वन इज इमोशनल पेरेंटिफिकेशन, where a child may be expected to provide, you know, emotional support and reassurance of, taking care of other responsibilities like taking care of siblings, या वो taking care of finances. लाइक आप कई मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में जब हम जाते हैं, जहाँ पे कि पेरेंट्स में एक सिंगल पेरेंट हो, या जहाँ पे बच्चे से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो स्टडीज छोड़ देते हैं कई बार, और बहुत अर्ली स्टेज में फिनेंस को हैंडल करने लग जाते हैं. नाउ दैट सिचुएशन कम्स अंडर दिस इमोशनल पेरेंटिफिकेशन वाला सीन, इंस्ट्रूमेंटल वन टू. एंड जब हम बच्चों से सारे कॉन्फिडेंट की तरह उससे डील करते हैं कि वी शेयर एवरीथिंग विद आवर चाइल्ड, thinking like कि whatever is going inside, at least we are sharing with our child. So that actually is the situation जहाँ पे कि हम एक emotional burden में डाल रहे हैं बच्चे को, because वो age appropriate burden नहीं है, age appropriate emotions नहीं है. A child can understand your things as per his or her age, right? So here, this is a typical belonging, this is a typical thing जो कि parents कई बार कर देते हैं. Now there is an instrumental parentification, of course, जहाँ पे हमने बात करी कि financially जहाँ पे बच्चा accountable हो जाता है, financially वो सारे practical responsibilities को लेने की कोशिश करता है, जो कि बड़ों की responsibility है, लेकिन बच्चा अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है. Like cooking, cleaning, right? Cooking, cleaning is something जहाँ पे हम बच्चों को कहते हैं कि okay, once in a week तुम कुछ cook करो, because we want them to, you know, to learn that activity. But if we totally, put our things like this कि शाम को जब मैं घर में आऊं तो तुम ये बना के रखना, शाम का खाना तुम बनाओगे और मॉर्निंग का मैं. नाउ दैट इज समथिंग कि बच्चा छोटा है और उससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो घर का कुकिंग का मैटर खुद संभाले, या क्लीनिंग. हम बच्चे को इन्वॉल्व करना इज डिफरेंट थिंग. हम कहते हैं कि बच्चे को इन्वॉल्व करो, हर एक्टिविटी में आप घर के एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो, बिकॉज हम चाहते हैं बच्चा, हम सजेस्ट करते हैं सो दैट अर्ली स्टेज से ही बच्चा उन एक्टिविटीज के साथ फैमिलियर रहे. वो अचानक से जब एक्सप्लोर करेंगे तो बर्डन फील करेंगे. बट अगर हम बच्चे को कंप्लीटली इस सिचुएशन में डाल देते हैं कि नहीं, क्लीनिंग तुम घर का देखोगे, डेली की साफ सफाई तुम्हें ही देखनी है, कुकिंग तुम्हें ही करनी है, नाउ दैट इज समथिंग जिसे हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल पेरेंटिफिकेशन का शिकार होना. कि बच्चे को हमने कंप्लीटली उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के को सौंप दिया, या बच्चा उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो कि उसकी एज के अकॉर्डिंग उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है. सो दिस इज अ डिफरेंस कि हमें इन्वॉल्व करना है, बट कितना करना है, दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड, राइट? सो दैट्स हाउ हम कहीं ना कहीं बच्चों को रिस्पॉन्सिबल कर देते हैं मैनेजिंग आवर इमोशंस और अदर थिंग्स, राइट? So I can resonate this with one of my friend. मतलब she was studying in with me in the school वो, and मतलब आप मान लो हम लोग 8th क्लास में थे and she lost her father. तो उसका भी सेम यही पर्सपेक्टिव रहता था, यार मम्मी मेरी अकेली है, उनके साथ मेरे को ये करना है वो करना है. घर जाने की उसको इतनी टेंशन होती थी कि वो एक सोशल लाइफ जो है ना, शी स्टॉप्ड एंजॉइंग दैट. आई वुड से दैट कि वो मतलब उसमें जाना ही उससे बंद कर दिया था, क्योंकि उसको माइंड रह के उसको अपनी मम्मी का टेंशन होता था उस चीज का. मम्मी का मुझे टेंशन घर होता जाके था. मम्मी की ये हेल्प करनी है. अब वो अब समझ हाँ, में आ रहा है कि वो हेल्प नहीं था, वो इंटेंशन मतलब अनइंटेंशनली एक तरीका वो का बर्डन बन चुका था. वो बर्डन था, प्लस उस बच्चे ने भी ये सोच लिया था कि मेरी मदर के इमोशंस को मैंने हैंडल करना है. कहीं ना कहीं बच्चे उस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर ले लेते हैं कि दे आर द वन हु आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर द वन हु नीड टू टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स इमोशंस बिकॉज पेरेंट्स आर टेकिंग केयर ऑफ आवर्स. सो दैट फीलिंग इज म्यूचुअल, दैट इज अ गुड थिंग. बट जब ये हद से ज्यादा बढ़ जाए और बच्चा गिल्ट फील करने लगे for his or her unavailability with their parents, now that is something जब वो उस सिचुएशन का शिकार हो जाते हैं. ये चीज देखी जाए ना तो ऐसा लगता है जैसे अब जैसे सिंगल मदर्स हो या सिंगल फादर हो, उनकी पर्सपेक्टिव से देखो तो ये वो लोग ये सोचते हैं कि हम डबल रोल अपना निभा रहे हैं. Absolutely, मतलब they आधा are. बेटा हाफ Yeah, जो उनकी उसमें नहीं है, वी आर गिविंग द बोथ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब हम दोनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटी को absolutely. निभा रहे हैं.
लेकिन Absolutely. अनइंटेंशनली वो ऐसा कुछ ओवर केयर समझ लो या ओवर प्रोटेक्शन समझ लो कि वो ऐसा उसके ऊपर Absolutely. ट्रांसफर होता है कि बच्चा जैसे आपका इमोशन समझ रहा है तो दे टेक इट एज अ टेंशन कि अच्छा हाँ मेरी मम्मी अलग है अकेली Absolutely. है या पापा अलग है, तो मेरे को उसके हाँ. हिसाब से मेरे को उनका केयर करना। Absolutely. Absolutely. Seriously, I'm hearing That is, and my that's why yeah, these all are emotions, and we need to understand and navigate them. So if we are conscious about the situation, so we'll be able to handle that situation appropriately. So that's how, that is why our aim to talk about parentification today is this only, कि at least हम इसके ऊपर थोड़ा सा vocal होंगे, थोड़ा सा पेरेंट्स को और किड्स जो कि इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, अगर वो हमें सुनेंगे तो दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि या वो एक थिन लाइन डिफरेंस जो है वो क्रिएट करना बहुत जरूरी है। so true, so true. Thank you so much for giving this information. मतलब आफ्टर हियरिंग दिस मतलब मेरे गूजबम्स खड़े हो गए कि ये सब चीजें सुन के कि ऐसा भी होता है। एंड व्हाट ऐसा वी होता है। कैन हैव सीन दैट पेरेंट्स जो है ना अपने बच्चों को हर तरीके से केपेबल बनाने के चक्कर में कहते हैं आप खाना बना लो, डस्टिंग कर दो, हाँ घर संभाल लो, हाँ टेक केयर ऑफ योर हाँ। एकेडमिक्स, पता नहीं कल को शादी कहाँ होगी, पता नहीं कौन सा करियर चूज करोगे, हो सकता है आप एब्सोल्युटली यहाँ रहो, हो सकता है आप कहीं एब्सोल्युटली बाहर जाके सेटल हो जाओ, तो यू नीड टू नो दिस 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 दिस। बट उस चक्कर में ये भी चीजें हो जाती हैं, वो कहीं पे एब्सोल्युटली मतलब अननोटिस्ड रह जाता है। थैंक यू सो मच फॉर एब्सोल्युटली गिविंग। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हर चीज को हम इंट्रोड्यूस जरूर करें बच्चों को, लाइक वीकेंड्स में या किसी स्पेशल ओकेजन में, जैसे अभी गणपति उत्सव आ रहा है तो डेफिनेटली आई विल आल्सो बी इन्वॉल्विंग माय किड्स, लाइक कि मैं मोदक बना रही हूँ, तो इफ दे विल फील दे विल डेफिनेटली be part of, otherwise they'll be sitting beside me, they'll be helping me in this ki okay if you need this साचा और क्या, तो दैट काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट इज इम्पॉर्टेंट, सो दैट जब कभी वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो वो अपनी उस सेलिब्रेशन को एटलीस्ट सेलिब्रेट कर पाएंगे, उस इवेंट को सेलिब्रेट पर ओकेजन को सेलिब्रेट कर पाए। दैट इज व्हाई इंट्रोड्यूसिंग दोज थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट पुटिंग ऑल द बर्डन, लाइक इफ आई से फॉर एन एग्जांपल, इफ आई गो आउट एंड आई से कि ओके टू माय किड्स कि मैं जब तक घर आऊं तब तक तुम ये सब चीज बना के रखना, now that is something which is not which need to be considered, कि बच्चों को बर्डन नहीं करना है, अपने साथ इन्वॉल्व करना है, so that they will learn, so making them learn is different thing rather than putting all the burden on them. Yes, yes, yes. Very good. And one personal question, how many kids do you have? And what are their ages? I have two. I have two kids. Oh, One, my son is in college now. He has just entered, and he is like he'll be enjoying his college life now. And wow. my daughter is in ninth grade. She is a teen, and both are teens actually. Right. But the elder one is now young boy. So this how that's how both the kids are doing their things. Superb, superb. And you seems to be so young that कोई देख के कह नहीं सकता इतने बड़े बच्चे हैं आपके। Thank you so much, Preeti. Coming from you, it's amazing. I mean, I'll take it like a compliment, of course, compliment, but ये मेरा आज के दिन को बना देगा. पूरे दिन I'll be super charged up. I So, have lots of grace, yes. I have fine lines, but I'm embracing all these. राइट राइट राइट। दीज आर द थिंग्स मीन्स आप ये नहीं कहोगे कि हाँ मैं ओल्ड एज की तरफ जा रही हूँ, बट दीज आर द थिंग्स विच कीप्स अस रिमाइंडिंग अस कि हाँ हमने इतना कुछ कर दिया है और इतना आज Actually, हमसे वो है मतलब इतना मेच्योर हम हो चुके हैं कि बच्चों को हम वो चीज दे चुके हैं। तो आई टेक इट एज अ absolutely. पॉजिटिव We are सेंस, maturing. दैट्स व्हाई आई सेड आपको Yeah. देख के कहीं से लगता नहीं है कि आपके बच्चे इतने बड़े हैं। Thank you, Preeti. Thank you so much. Yeah. My pleasure. So in continuation to this, as we have you have told that ये parentification के अंदर ऐसे ऐसे psychological और emotional aspects होते हैं, तो इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे अगर जिस टाइप से मतलब किसी बच्चे का सेल्फ एस्टीम या उसका मेंटल हेल्थ पे इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? हम अब अगर बात करते हैं तो फर्स्ट जो बहुत ही क्या कहते हैं किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल तो सीधे सीधे हम देखेंगे कि वो बच्चा तुरंत मेच्योर हो जाता है, राइट राइट। हम एज अर्ली मेच्योरिटी जिसे कहते हैं, बिकॉज वो द चाइल्ड में एग्जिबिट बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड्स जो कि बियॉन्ड उनके एज के हैं, दे आर नॉट बिकॉज ऑफ कोर्स वी आर एक्सपेक्टिंग देम टू मच फ्रॉम देयर एज, सो सडनली वो मेच्योरिटी गेन कर लेते हैं। ऑल्सो बिकॉज वो मेच्योर हो चुके हैं, देर इज अ काइंड ऑफ लैक ऑफ बाउंड्रीज ऑल्सो, लाइक जो बाउंड्रीज पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में होनी चाहिए वो बाउंड्रीज कहीं ना कहीं क्रॉस हो जाती है, बिकॉज पेरेंटिफाइड चाइल्ड जो होता है वो स्ट्रगल कर रहा होता है अपने
पर्सनल बाउंड्रीज के साथ, they are unable to understand what exactly they need, what exactly are their desires. Rather they feel कि what my family members are looking for, what exactly they are expecting out of that. So वो पूरा उसका जो टाइम है या जो उसका ब्रेन है वो फंक्शन कर रहा होता है what the family members are expecting him or her to do, rather than अपनी एज को एंजॉय करने की बजाय वो अपनी एज से ज्यादा मैच्योर है. दे आर नॉट एबल टू they feel more responsible about each and every act in the family. Also sometimes they start taking decisions. वो जो डिसीजन मेकिंग होती है, पेरेंट्स की जो डिसीजन मेकिंग होती है, वो कहीं ना कहीं वो खुद उनकी तरफ से लेना स्टार्ट कर देते हैं. तो वहां पे वो जो बाउंड्री है वो क्रॉस हो जाती है. लाइक पेरेंट्स को जो डिसीजन लेने होते हैं वो कहीं ना कहीं वो बच्चा लेने लगता है. तो वो कॉन्फ्लिक्ट का स्टार्ट हो जाते हैं फैमिलीज में भी, बिकॉज हम बहुत ज्यादा उनके साथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके साथ. सेल्फ एस्टीम, डेफिनेटली उनकी सेल्फ एस्टीम लो होती है, बिकॉज वो वर्थलेसनेस फीलिंग तो है ही, बिकॉज अपनी नीड्स और अपनी डिजायर को पीछे रख के वो अपने फैमिली में अपने पेरेंट्स की डिजायर्स को या अपने सिबलिंग की डिजायर्स को फुलफिल कर रहे होते हैं. एंड कहीं ना कहीं वो भटक जाते हैं. वो उनको खुद को ही नहीं पता होता है कि उनकी खुद की खुशी क्या है. कभी कभी वो गिल्ट में भी चले जाते हैं. अगर वो खुद को प्रायोरिटाइज करेंगे या करते हैं या अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज करते हैं, बिकॉज हैं तो वो बच्चे ही ना, तो अगर वो अपनी खुद की नीड्स को प्रायोरिटाइज करते हैं तो सो मेनी टाइम दे फील गिल्ट ऑल्सो. गिल्ट में भी जाते हैं कि यार मैं सेल्फिश तो नहीं हो गया हूँ या सेल्फिश तो नहीं हो गई हूँ, मुझे तो इनकी डिजायर्स और नीड्स का ध्यान रखना है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर. आई एम देयर इमोशनल सपोर्ट और वट एवर. तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ एस्टीम आपकी, क्योंकि आप एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड से आगे बढ़ रहे होते हो. ये आपके लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो उस बच्चे के लिए एक स्ट्रेस एंड एंजाइटी को भी इंक्रीज करते हैं, बिकॉज कॉन्टिन्यूअस रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करना एक अपने आप में एक स्ट्रेस एंड एंजाइटी भी है. आप आउटबर्स्ट कर जाते हो कई बार, बिकॉज आप उस एज पे नहीं हो, लेकिन वो प्रेशर जो है आपका उस एज से बड़ा है, तो उस बर्डन की वजह से आप प्रेशराइज फील करते हो. आप अपना चाइल्डहुड खोते हो. दूसरा इम्पैक्ट जो आता है अगर अपन देखें तो आपका चाइल्डहुड खो गया है. आप अपने बराबर के बच्चों के साथ नहीं खेल रहे होते हो, रादर यू आर बिजी टेकिंग केयर ऑफ सम अदर थिंग्स. आप फोर्स किए जाते हो इस पेरेंटिफिकेशन की जर्नी में. कहीं ना कहीं आप फोर्स किए जाते हो टू बिहेव मेच्योरली. अगर आप बच्चे की तरह रहना भी चाहो तो कहीं ना कहीं फैमिली की तरफ से एक प्रेशर आता है कि सी यू आर यंगर, यू आर एल्डर वन, आपको तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखनी है, आप तो बड़े हो चुके हो. तो आप कहीं ना कहीं उस चाइल्डहुड को लूज कर देते हो ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन. वो कुछ भी हो सकता है. हर फैमिली में अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं. तो ये सर्कमस्टांशियल इश्यूज जो हैं वो कहीं ना कहीं लॉस ऑफ चाइल्डहुड को भी क्रिएट कर देते हैं. देन हम कहेंगे रोल कंफ्यूजन, जो हमने ऑलरेडी बात करी है कि बच्चा छोटा है लेकिन वो बड़ों का रोल निभा रहा है, तो वो कंफ्यूज रहता है, गिल्ट फील करता है. they are they have difficulty in establishing boundaries also, like parentified अगर हम करें तो बाउंड्रीज चाइल्ड और बच्चे के बीच के अंदर की जो बाउंड्रीज है वो ब्लर हो जाती है कहीं ना कहीं. दिस इज ऑल्सो वन इफेक्ट. एंड जिसकी वजह से पेरेंटिफाइड चाइल्ड जो है वो अगेन इमोशनली एग्जॉस्ट भी होता है. जब आप बहुत सारी चीजें हैंडल कर रहे होते हो तो आप इमोशनली एग्जॉस्ट होते हो, आप अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाते हो, और इस वजह से आपके सारे जो रिलेशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं आप मैनेज नहीं कर पाते हो. इसका अगर हम बात करें, ये तो हो गए वैसे इफेक्ट, लेकिन इसका साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट आता है वो आता है लॉन्ग टर्म में उस बच्चे के एडल्टहुड स्टेज पे. लाइक आप छोटे उम्र से जब आप ये सारी चीजें हैंडल करते हो, तो जब आप बड़े हो जाते हो तब आप अपने पार्टनर के साथ या जो अपने एसोसिएट्स हैं उनके साथ रिलेशन एस्टैब्लिश करने में कहीं ना कहीं आपको चैलेंज आता है, बिकॉज आप केयर गिवर हो, आप हमेशा अवेलेबल रहना चाहते हो. तो आप वो बाउंड्रीज क्रिएट नहीं कर पाते हो जहां पे कि आप खुद को हर्ट होने से बचाओ, बिकॉज यू आर अ केयर गिवर, यू ऑलवेज वांट टू गिव टू अदर्स. एंड दस हाउ इस वजह से जो केयर गिवर्स होते हैं वो खुद की फीलिंग्स को बार बार हर्ट करते हैं, बार बार कंफ्यूज होते हैं, एंड लॉन्ग रन में अपने एडल्ट स्टेज पे जाके उनका इनर चाइल्ड जो होता है वो हील नहीं हो रखा होता है. नाउ दीज आर द इफेक्ट्स जो कि इस पर्टिकुलर स्टेज पे से जो गुजर रहे होते हैं वो may they face in their long run. आपकी ये पूरी बातों ने ना मेरे को वापस उसी फ्रेंड के उसमें वो किया. आई शेयर वन स्मॉल थिंग विद यू कि जिस तरीके से Yeah. आपने बताया कि हाँ ये एंजाइटी और स्ट्रेस हो जाता है,
when she lost her father, उसको पता नहीं अंदर किस चीज का क्या गिल्ट था या कुछ ऐसा था कि इन द स्कूल वी वर नॉट हम्म, अलाउड कि कंपास या आप ब्लेड या नाइफ वगैरह कुछ ऐसे शार्प ऑब्जेक्ट्स लेके आओ, कोई हाँ, स्कूल अलाउड नहीं। राइट। यू वोंट बिलीव वो स्कूल में ब्लेड भी लाई थी एंड शी जस्ट डिड दिस। कट। हाँ, और वो उस टाइम पे हम लोगों को भी नहीं समझ आया कि इसने ऐसा बैठे बिठाए क्यों, मतलब क्लास में ट्रू। टीचर पढ़ा रही थी एंड इट वाज अ नॉर्मल क्लास गोइंग ऑन एंड शी डिड दिस एंड वी जस्ट गॉट सो मच स्कैर्ड। उसके घर से फोन करके उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया, सब कुछ वो करके। बट द थिंग वाज के टाइम टू टाइम उसको लेके गए तो फिर वो ड्रेसिंग होके इसका ठीक हो गया था। बट नाउ आई कैन रेजोनेट कि हाँ ये सब चीजें उस टाइम कि पे इसके उसका माइंड जो, में बिल्ड अप। हाँ, और कहीं ना कहीं उसका इनर चाइल्ड, अगर आज वो आपकी फ्रेंड है और आपके आसपास है, तो आप रेजोनेट कर पाओगे उनसे कि कहीं ना कहीं वो उनके अंदर की वो जो फीलिंग्स है ना, वो क्रेविंग जो है, क्रेविंग फॉर लव, क्रेविंग फॉर इमोशनल सपोर्ट, वो रहेगी, वो अपनी पेरेंट के साथ रहेगी उनकी वो क्रेविंग। बिकॉज कहीं ना कहीं वो जब आप छोटे होते हो और व्हेन यू गिव केयर टू योर पेरेंट्स और टू योर सिबलिंग्स एंड ऑल, तब आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते हैं एंड यू फील लाइक आई एम रिस्पॉन्सिबल। लेकिन लॉन्ग रन के बाद यू फील दैट नाउ थिंग्स आर सेटल्ड, एवरीथिंग इज फाइन, बट अगेन, again situation is the same. I am the only one who is taking care of this. Nobody is thinking about my emotions, because वो जो केयर गिवर है उसको शुरू से ऐसे नर्चर कर दिया गया कि आप तो रिस्पॉन्सिबल हो। लेकिन दूसरे जो होते हैं, जो एसोसिएट होते हैं उस सिचुएशन से, अननोइंगली दे डोंट नो ऑल दीज थिंग्स। वो तो केयर टेकर्स होते हैं एक्चुअली, मतलब वो टेकिंग सिचुएशन में होते हैं। तो यस। इस वजह से जो पेरेंटिफाइड चाइल्ड है, वो डिफरेंट काइंड ऑफ इस तरीके के इमोशनल ट्रॉमा से भी गुजरते हैं लेटर स्टेजेस में। इट इज लाइक, अगर इसको आइडेंटिफाई ना किया जाए या इसको एड्रेस ना किया जाए, तो लेटर स्टेजेस बहुत टफ हो जाती हैं उनकी। And you won't believe she is a single child of her parents. She was the only या, daughter. आई Or कैन even though अंडरस्टैंड, she आई is कैन इवन आई settled, एम, even yeah, she is settled with I her share family. mine. I am a single child of my mama, and she's no more now. But certainly ये जो parentification वाला जो मैं बात कर रही हूँ कि बचपन में you feel like responsible for your parents and all, this happens. This happens. Even I certainly, many a time I felt I have gone through to these situations where I used to take care. But with my mother, things were different. Like she was overprotective, she was over caring with me, about me also. She was equally present to take care of me. And that's how, matlab, we were mothering each other. It was that kind of situation. Right, right. So I can absolutely understand ki, how it feels when one goes through to this stage. So, and hats off to you for being such a strong lady, जो इतना Thank you मतलब so अपनी मम्मी much. को भी देखा ध्यान तो वो कर पाए और साथ में अपने बच्चों का भी इतने अच्छे से आप वो कर पा रहे हो। Thank you so much. She was a support, she was a pillar. And I think certainly कहीं ना कहीं हम अपने पेरेंट्स का रिफ्लेक्शन होते हैं किसी तरीके से। लाइक हमने अगर हार्ड वर्क, इवन आई एम टॉकिंग टू यू, तो कहीं ना कहीं आप भी ये फील करोगे कि हमारे पेरेंट्स की जो प्रेजेंस होती है उनसे ही हम बहुत कुछ, वो जो पास ऑन करते हैं, हम उसको अपनी पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करते हैं। हो सकता है 100% नहीं, उन्होंने जो दिया होगा हमने 50% एब्जॉर्ब किया होगा, और कहीं ना कहीं उसको हम जो उसकी 50% में से जो स्ट्रॉन्ग चीजें हैं वो हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को देना चाहते हैं। तो ये जो हार्ड वर्क है एंड स्टैंडिंग, एंड शी वाज ऑलवेज लाइक कि डोंट सिट आइडल, लाइक टाइम खराब नहीं करना है, कीप डूइंग, कीप यूजिंग योर टाइम, अपने काम करते रहो, लर्न करते रहो कुछ ना कुछ। नाउ दिस इज वन थिंग विच आई लर्न फ्रॉम हर, because she was having a craving to to continue her studies. She wanted to learn a lot, she wanted to do a lot, because उनको पढ़ना पसंद था। बट कहीं ना कहीं क्योंकि शी वॉज इन जॉब, वो नहीं कर पाई। तो वही होता है, जो आप नहीं कर पाते हो आप चाहते हो आपके बच्चे करें। तो दैट्स व्हाई आई वाज अ मिशन इन हर लाइफ, एंड आई थिंक वी आर देयर रिफ्लेक्शन समहाउ। एंड यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। मतलब इतना जैसे आपका मैंने थैंक पॉइंट यू। ऑफ व्यू ये पढ़ के बताया ना तो नाउ आई कैन थैंक कि यू। हाँ ये कितना हार्ड वर्क यहाँ से आया है।
मतलब इतना, अगर ये डॉक्टर ज्योति बनी है तो ये ऐसे बनी है. इट्स नॉट अ Thank you so much, टास्क. Preeti. Thank you so much, Preeti. That means a lot. That means a lot. And it's a Yeah. blessing for me to get interacted with you on this platform. Same here. Same here. It's not just, I'm just not giving you same here word just for the saying of saying. It is same here because you are taking care of Arya, as I personally know you. We are, group of coaches and we are connected through our learnings and many of the things. But personally, we are humans. Personally, we see each other. So the way you are taking care of Arya, that's how I connect to you, that the way my mom was there and she was like a tigress to take care of mine, and she had many of the things. She always felt she was coy kind. She was not able to, reply back. And she always felt that one day my daughter will be someone who will play with words and not to humiliate somebody, not to insult somebody with those words, but to use those words to contribute. So that was her dream. So that's how I'm saying the way you are doing, I salute you for the same, the how much you are putting and the way you are putting in Arya. And certainly I see Arya, um, flourishing and, making all of us proud. थैंक यू सो मच. एंड शी व्हाट शी डज इज ना, उसका अपना खुद का हार्डवर्क, जैसे आपके अंदर है ना एक अंदर की ज्योति आपने जगा के रखी है अपने अंदर, वैसा ही सेम Yes, आर्या के she अंदर. is. व्हाट आई Yeah, डू I इज, can. मतलब बहुत सारी चीजें तो उसको अभी मैंने बताया नहीं है, कुछ वो नहीं, बट व्हेंस आई दिस थिंग हैपेंड एंड व्हाट एवर आई हैव लर्न फ्रॉम द वैल्यूज फ्रॉम माय ग्रैंड पेरेंट्स, फ्रॉम माय पेरेंट्स, तो मेरे को ये रहता है कि उसको मैं वो चीज दूं. एंड शी इज अ ट्रू Absolutely. फाइटर, मतलब जिस टाइप से वो बात करती है Absolutely. या वो करती है, रिस्पॉन्ड भी करती है ना, she is the same true She fighter. is. Same the true fighter. Absolutely. Absolutely. That's But superb. there are Yeah. seriously lot and lots of things from you to learn for me. मतलब ये concept आज मेरे पास नया आया, and the next question was for this only, कि पेरेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वो Hmm. अनइंटेंशनली जो है पेरेंटिफिकेशन कर रहे हैं. Hmm. So first of all, I would suggest कि reflect on your expectations. मतलब सबसे पहले आप, no matter how hard situation you are facing, no matter आप किस situation को deal करेंगे, but आप first ये जरूर reflect करिए अपनी खुद की expectations पे कि evaluate कि क्या responsibilities आपके अपने बच्चों को आपको pass on करनी है, क्योंकि definitely you need support. आप आज even I will share about mine कि आज अगर बच्चे मेरे बड़े हैं, तो एक टाइम आया जब मैंने अपने बेटे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि ओके नाउ यू विल टेक माय डॉटर, मतलब योर सिस्टर, टू हर कथक क्लास बिकॉज दैट इज वेरी नियर and I am coming the time I am coming, and I use mostly I'm free by 4, and that is the time where she start with her class, so I pass on that responsibility to him ki till the time you are free, you just take her, and this is your responsibility because वो 1 मिनट के रास्ते पे है, because right now he is free, little free, he can do that. So we need to reflect on expectation also कि कितनी responsibility देनी है, और उस बच्चे को एज अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दें हम, ना कि एवरीथिंग लाइक यू हैव टू मैनेज योर फिनेंसेस ऑल्सो, आपको खाना भी बनाना है, आपको क्लीनिंग भी करनी है, तो फिर बच्चा पढ़ेगा कब, बच्चा खेलेगा कब, बच्चा अपने फ्रेंड्स से कब मिलेगा, वो सारी चीजें हमें ध्यान में रखने की हैं. फर्स्ट, सेकंड, encourage इंडिपेंडेंस, अगेन एक्नॉलेजिंग देयर सेफ स्पेस, देयर पर्सनल स्पेस. हर जैसे हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, वी ऑल आर ह्यूमंस, और बच्चा जो है वो एक इंडिविजुअल है, सिमिलर लाइक अस, कि जैसे हमें अपना एक सेफ स्पेस चाहिए, एक पर्सनल स्पेस चाहिए, नो मैटर हम कितने भी थके हुए हो, हमें 10 मिनट्स खुद के लिए चाहिए, वैसे ही बच्चों को भी उनका एक सेफ स्पेस आप प्रोवाइड करिए, उनको उनका पर्सनल जो स्पेस है वो उनको प्रोवाइड करिए, उनको एंकरेज करिए, एज अप्रोप्रिएट डिसीजन लेने के लिए उनको एंकरेज करिए, एंड हेल्प देम कि वो अपना वो जो भी एक्टिविटी वो कर रहे हैं वो उसको इंडिपेंडेंटली हम करने में उनकी हेल्प करें, रादर देन उनको हर चीज में उनकी मिस्टेक्स निकालना, हर चीज में उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराना कि सी आई एम अलोन एंड आई एम डूइंग दिस एंड आई एम डूइंग दिस फॉर यू. रादर देन गिविंग दीज स्टेटमेंट्स, ट्राई टू आइडेंटिफाई कि बच्चे का अपना अपना खुद का जर्नी भी है. थर्ड, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू योर चाइल्ड. It is good to take a emotional support from a child, but it is equally important to provide the same to your child. जो पेरेंटिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं कि पेरेंटिफाइड चिल्ड्रन जो होते हैं वो एक्चुअली
सपोर्टर्स होते हैं, वो सपोर्ट कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स को, लेकिन एक्चुअली उनको अपने पेरेंट्स से या फैमिली मेंबर्स से उस तरीके का इमोशनल सपोर्ट वापस नहीं मिल रहा होता है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इट इज अ म्यूचुअल थिंग. Take support and but be available for that emotional support for your child also. Now that is very important, and thus how you can maintain that healthy boundaries too. You need to understand कि अगर आप ये सारी चीजें करेंगे तो एक healthy boundaries भी आप create कर पाएंगे आपके बच्चे के साथ. आप उसके साथ conversate कर पाएंगे, आप अपने emotions share कर रहे हैं तो उसके emotions भी आप similar time पे सुन पाएंगे. And thus how this works. And इसके अलावा आप सबसे पहले अपना ध्यान रखिए, बिकॉज इफ यू आर फाइन ना, सारी चीजें ठीक है. तो सबसे इंपॉर्टेंट है खुद का ध्यान रखना, बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर इमोशंस, फॉर आवर हेल्थ, फॉर सिचुएशंस, एवरीथिंग. सो ट्राई कि आप अपने आप को उस सर्कमस्टेंस से बाहर निकालने की कोशिश करें. फाइंड आउट करें कि व्हाट बेस्ट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ, एंड धीरे 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 छोटे छोटे स्टेप लेके कोशिश करें कि आप अपने बच्चों के साथ ही उस हेल्दी बाउंड्रीज को, हेल्दी बॉन्ड को क्रिएट करते हुए आगे बढ़ें. माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस वाज यही हो ना कि आप 3 टेकअवेज क्या देना चाहोगे, बट आपने तो इतने सारे टेकअवेज दे दिए एज अ नगेट्स की इट्स गोइंग टू रियली हेल्प द पीपल अ लॉट. बट स्टिल एक टेक अवे और 2 टेक अवे मैं डेफिनेटली, जो हमने बात करी 3 टेक अवेज अगर हम लेते हैं तो आई वुड से कि सेल्फ केयर, जिसकी अभी जस्ट मैंने बात करी है, जस्ट ट्राई टू ट्राई टू आइडेंटिफाई कि क्या आपको डिस्टर्ब कर रहा है. अपना खुद का एक रूटीन सेट करें, नो मैटर हाउ लोनली यू आर, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट यू आर एन इंडिविजुअल. तो अपने इनर चाइल्ड को आप खुद पेरेंटिफाई करने की कोशिश करें, रादर देन सीकिंग अ सपोर्ट फ्रॉम योर चिल्ड्रन. इमोशनल सपोर्ट आपको मिलेगा अपने बच्चों से, बट रादर टू लीडिंग देम टू बी अ पेरेंटिफाइड चाइल्ड. स्टार्ट पेरेंटिफाइंग योर ओन इनर चाइल्ड. दैट इज वन थिंग विच आई एम सेइंग, कि आपके अंदर के इनर चाइल्ड को आप खुद पेरेंटिफाई करिए. आप अपना ध्यान रखिए, अपना रूटीन सेट करिए, देन सीक सपोर्ट. इफ यू फील दैट यू आर फेसिंग सम एक्सट्रीम सिचुएशंस और एक्सट्रीम something which which really requires to be identified, तो आप थेरेपिस्ट या काउंसलर्स को कंसल्ट करिए. They will definitely help you. Like you can go for individual therapy, you can go for family therapy. These therapists definitely will help you how to identify and how to declutter your thoughts, how to, how to come to that solution wala part. So seek support. And third one is learn parentifying or your inner child, जो मैंने already आपसे बात करी ली है. Right. So such a beautiful crux you have given for the whole talk show कि पहले तो अपने आप का पेरेंटिफिकेशन को आइडेंटिफाई करो एंड देन स्टार्ट पेरेंटिफाइंग योरसेल्फ ओनली. मतलब खुद के लिए आप पेरेंटिफाई करना अपना शुरू कर दीजिए. एंड इफ यू नीड एनी सपोर्ट यू कैन टेक द कंसल्टेशन फ्रॉम एनी प्रोफेशनल, जो काउंसलर्स हैं या थेरेपिस्ट हैं जो इन चीज़ों को डील करते हैं, एंड दे आर द बेटर वंस टू टेल यू कि किस टाइप से आप इस ट्रॉमा से या किसी भी पेन से आप बाहर आ सकते हो, बाहर निकल सकते हैं. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. आपको मैम कोई ऐसा थेरेपी या कुछ ऐसा पता है जो करने से थोड़ा मतलब रिलीफ पेरेंट्स कर सके, जो सेल्फ लव में आ सके, कुछ ऐसा हो? फर्स्ट ऑफ ऑल सी प्रीति, अपन सब जब बात करते हैं अपने क्लाइंट से तो कहीं ना कहीं हम उनको वही बात करते हैं, मैनिफेस्ट करना. उनको हम बोलते हैं ब्रीदिंग टेक्निक्स को फॉलो करना. रूटीन इज वन थिंग विच दे कैन फॉलो. दे कैन, हम आइडिया ये है कि सबका अपना फैमिली सिस्टम है. आपके घर का सबके पास एक कॉर्नर है. तो आइडेंटिफाई दैट कॉर्नर फर्स्ट, वेयर यू कैन सिट एंड फाइंड दैट सोलेस. सिटिंग विद योरसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट डजंट मीन कि आप बैठ के केवल कोई ध्यान करेंगे, नो, या आप कोई ओम चैंटिंग करेंगे. इफ दैट हेल्प्स, डू इट. अगर आप ओम चैंटिंग करके, मेडिटेशन करके आप वो सब चीजें करिए, माइंडफुल प्रैक्टिसेस, डेफिनेटली आप उसको फॉलो करिए. बट सिटिंग विद योरसेल्फ, but not not doing overthinking. Now that is one practice which is required. Being in present. Being in present is one thing जो आपको help करेगा, अपने future और past से दूर रखने में. When you are sitting in a corner with a chai, so enjoy that sip आराम से. One thing. थेरेपी की जब हम बात करते हैं, इंडिविजुअल थेरेपी, यू कैन गो फॉर CBTs.
You can go for a therapist. जब आप therapist के पास जाएंगे, and when you will share your things, because every case is different, so they will decide on कि whether you are in a condition where you need talk therapy only, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें केवल एक लिसनर की जरूरत होती है. तो टॉक थेरेपी इज वन थिंग, देन सीबीटीज अगर एक्सट्रीम है तो सीबीटीज आर आल्सो देयर, देन फैमिली थेरेपी इज देयर, वेयर हो सकता है कि आपके साथ आपके फैमिली में दूसरे मेंबर्स भी हैं जो कि कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से एसोसिएटेड हैं, तो दे कैन कम, यू कैन ask for, they can suggest you family therapies also. So looking into that situation, therapist can provide you. Counselors are always available where they can counsel you, where they can help you in understanding what exactly you are in and how you can declutter your thoughts. So these counselors are there who can help you guide कि आप अपने थॉट्स को डीक्लटर कैसे करेंगे. इट इज एब्सोल्युटली डीक्लटरिंग योर थॉट्स, क्योंकि जैसे आप डीक्लटर करते हैं ना, आपको वो विजन दिखने लगता है, आपको समझ में आने लगता है कि यस मैं यहाँ पे हूँ और मुझे ये करना है. क्लैरिटी जो होती है ना, वो आपको मिलती है डीक्लटरिंग से. So just go and seek for support and try to identify who you are. What is your purpose? Because life is too, हम कहते हैं life is too short. I would say life is too long too. क्योंकि हम जहाँ पे बैठे हैं वहां से लाइफ लंबी भी है और छोटी भी है. तो we need to identify कि हमें करना क्या है. So true, and so beautifully explained all the therapies. कि कैसे हमको इस चीज को टैकल करना चाहिए. एंड स्मॉल थिंग आई वुड शेयर कि इसके अंदर से आई डू टेक आउट टाइम फॉर माई सेल्फ एटलीस्ट 5 to 10 minutes. एंड आई That's हैव great. अ हैबिट ऑफ लिसनिंग टू हनुमान चालीसा. तो Wow. एवरी नाइट आई डू दिस. और जब हाँ, वो करो ना तो पूरा that's super. दिन का पूरी थकावट और पूरा सब कुछ वो खत्म हो जाता है. Absolutely. You feel like you feel somebody is there. We are taken care by God. Spiritual connection जिसे कहते हैं ना कि spiritually connect कर रही है आप. That actually helps you build your, inner self. So that's superb, Preeti. You are doing so good and so great and helping a lot of people in by your NLPs also. So I'm sure parents are super blessed also. Those who are connecting to you and asking for help, you are already doing it. So super. Thank you so much. And my perspective for doing this talk show was this only, कि अलग-अलग niche से I could get the people and can spread the awareness also. This is also a part of NLP. Absolutely. Means एक mindset के Absolutely. ऊपर I was trying to work out and help the people as much as I can. ये आपने बोला ना selfless giving. तो वो तो हाँ, उसके भरी हुई. selfless giving is really important even to my students, to many of, whenever I interact with people, I just believe that whatever we are receiving from society, it is our responsibility to give it back by at any way, in any way. It is not essential कि हम किसी तरीके का दान धर्म करें, वो हमारी कैपेसिटी में हम डेफिनेटली करें, बट क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड ऑल दिस एंड कंट्रीब्यूटिंग दिस वे इज अगेन अपने आप में एक तरीके का वो है, डीड है. Yes. Yeah. So Thank you nice to so much. interact with you. Thank you so much for coming for this talk show and lovely inputs you have shared today. It's Thank going you. to Thank you so I much. mean, it's going to help me also personally. And And if anytime, we can connect anytime. thank you so much. And I'm going to shoot this video on social media. If you people need any help from Dr. Girish, you can ask her, you can contact her directly and take help from her. So thank you so much, Thank Dr. you so much. Jyoti, for coming Thank you. again. And yes, we'll be interacting more and more in the talk shows now. Yeah, thank you so much. I'll be coming with, Super Mom's journey too. And probably not probably, we'll be connecting there. Right. Yeah. Sure. Where we'll be sharing our motherhood journeys. Right. Yes, absolutely. Yeah. So take care, stay blessed, and keep healthy. Thank you.